شہید رائے احمد خان کھرل تاریخ انسانی کے اس دوسرے معتبر سر کی کہانی ہے جس 10 محرم کے دن نماز میں اتار کر نیزے پر سجایا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی سنت کو ہر کسی نے اپنی اپنی اہلیت کی بنیاد پر سمجھا اور قبول کیا، لیکن کوئی ایسا نہ نکلا جو سید الشہداء کی مثل کربلا جیسے میدان میں کھڑا ہوتا بجز شیر دل کے، جس نے ٹھیک 1.5 صدی قبل راوی کے کنارے اٹھنے والے طوفان جبر کے سامنے انکار کا ایسا علم بلند کیا کہ کارل مارکس بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، اور جب یہ داستان بہادر شاہ ظفر تک پہنچی تو اس نے بھی اسے خوب سراہا۔ رائے احمد خان کھرل 1776 عیسوی کو جھامرا ضلع فیصل آباد میں رائے نتھو خان کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق راجپوت کھرل قبیلہ سے تھا۔ انگریز دشمنی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کہنے کو تو اس سرہنگ زادے کی شہرت کا علاقہ دریا کے دونوں جانب پھیلا ہے، مگر بہادری کی سرحد نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا جب پنجاب کی مائیں احمد خان کھرل کی کہانی لوریوں میں سنایا کرتی تھیں۔ رائے صاحب کے آباء و اجداد سیاسی طور پر مغل ڈائنسٹی کے ساتھ وابستہ تھے۔ گوگیرا کی جاگیر انہیں اورنگزیب عالمگیر نے الاٹ کی تھی۔ گزشتہ 1.5 صدی سے وہ اس علاقے کے رئیس اور سردار تھے۔ رائے صالح کا آخری وقت آیا تو اس نے سرداری کی پگڑی اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بھتیجے احمد خان کے سر پر رکھی اور کھرلوں کی سربراہی اسے سونپ دی۔ اسی دوران میں رنجیت سنگھ پنجاب کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جب پورا پنجاب سکھوں کے زیر نگیں ہوا تو مہاراجے نے یہ معمول بنایا کہ ایک ایک علاقے میں جا کر عمائدین سے ضرور ملتا۔ سید والا آمد پر مصاحبین نے رائے احمد خان کا تعارف کروایا۔ مہاراجا نے احمد خان کو اپنا پگڑی بدل بھائی بنا لیا۔ رنجیت سنگھ کو پنجاب میں زیادہ مزاحمت کا سامنا اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے بیشتر علاقوں میں صلح جوئی سے فتح پائی تھی۔ 1839 میں مہاراجا کی وفات کے بعد کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد نونہال سنگھ، شیر سنگھ اور دلیپ سنگھ وغیرہ، یہ سب رنجیت سنگھ کے بیٹے تھے، مگر آپسی چشمک کی وجہ سے کوئی بھی پائیدار حکومت نہ بنا سکا۔ پھر ان کے وزراء لال سنگھ، تج سنگھ اور کشمیر بیچنے والے غلاب سنگھ جیسے غداروں کی وجہ سے 1849 میں پنجاب پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ لارڈ برکلے 1857 میں 28 سال کی عمر میں گوگیرا کا لارڈ متعین ہوا۔ دلی اور میرٹھ میں جنگ کے شعلے بڑھ گئے تو پنجاب میں بھی اس کی تپش محسوس ہوئی۔ انگریزوں نے شورش سے بچنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کی۔ اس مقصد کے لیے جگہ جگہ جیل خانے بنائے اور باغیوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ ایسی ہی ایک جیل گوگیرا میں بھی بنی۔ سن 57 کی پہلی گولی مئی میں چلی تھی۔ جون کی ایک صبح گوگیرا میں تعینات انگریز افسر برکلے نے علاقے کے معتبر سرداروں کو طلب کیا۔ راوی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان برکلے کو ملے۔ انگریز افسر نے بغاوت سے نپٹنے کے لیے گھوڑے اور جوان مانگے۔ احمد خان نے جواب دیا، ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے گھوڑے، عورت اور زمین کسی کے حوالے نہیں کرتے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ 10 جون 1857 عیسوی کو ملتان چھاونی میں پلاٹون نمبر 69 کو بغاوت کے شعبے میں نہتہ کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو معادس سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاونی کے درمیان میں واقع پل شوالہ پر دربار بہاؤدین ذکریہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے لگ بھگ نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ یہ مخدوم شاہ محمود قریشی موجودہ شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا تھے۔ کچھ باغی دریا چناب کے کنارے شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہیں دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیر لیا اور ان کا قتل عام کیا۔ مجاہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دیں۔ کچھ لوگ دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے اور کچھ لوگ پار پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان احمد قتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی خورنگا کی طرف نکل گئی، جسے مہر شاہ آف حویلی خورنگا نے اپنے مریدوں اور لنگڑیال، حراج سرگانا اور ترگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کیا۔ انگریز نے بدلے میں ان غداروں کو جاگیریں عطا کیں۔ جب درگاہوں کے سجادہ نشینوں کی طرف سے مجاہدین آزادی پر زمین تنگ کر دی گئی، ایسے وقت میں رائے احمد نواز خان کھرل کا وجود ان کے لیے سایہ عافیت ثابت ہوا۔ آپ نے نہ صرف انگریز افسر برکلے کو گھوڑے اور جوان دینے سے انکار کیا، بلکہ معرکہ خورنگا سے بچ جانے والے مجاہدین کو بھی پناہ دی۔ انگریز فوج نے احمد خان کھرل کی گرفتاری کے سلسلے میں جھامرے پر حملہ کیا۔ سردار نہ ملا تو بستی کو آگ لگا دی اور بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔
उधर जुलाई के पहले हफ्ते दरियाए सतलज के किनारे आबाद वट्टू कबीले ने अंग्रेज सरकार को लगान देने से इनकार किया तो अंग्रेज ने उन पर चढ़ाई कर दी। उनके माल मवेशी हंग कर ले गए और बस्तियों को आग लगा दी। इसी दौरान में गोगीरा के बहुत से खानदान और मुजाहिदीन कैद कर लिए गए। अंग्रेज के इस इकदाम की खबर जब राय अहमद खान खरल को पहुंची तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने जेल तोड़ने का फैसला कर लिया। गोगेरा बंगला की जेल में खरल सरदार के मुजाहिदीन भी कैद थे। चुनाचे 26 जुलाई 1857 ईस्वी को राय अहमद खान खरल ने अपने साथियों मुराद फतेहाना और बहलूल फतेहाना के हमरा जेल पर हमला कर दिया और कैदियों को छुड़ा लिया। इस मार्के में राय अहमद खान खरल खुद भी जख्मी हुए। अहमद खान और उसके साथियों के अलावा खुद कैदी भी बड़ी बेजगरी से लड़े। इस लड़ाई में 450 अंग्रेज सिपाही मारे गए। इस वाक़े से अंग्रेज इंतजामिया में खौफ खैराज फैल गया। राय अहमद खान गोगेरा जेल पर हमले के बाद अपने साथियों समेत आसपास के जंगलों में जा छुपा। बर्कले ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अहमद खान के करीबी रिश्तेदारों, अजीजों और बहू बेटियों को हिरासत में ले लिया और पैगाम भेजा कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना उसके घर वालों को गोली मार दी जाएगी। उस पर राय अहमद खान खरल पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ, मगर फतेहाना, जाटों और वट्टुओं की बढ़ती हुई मज़ाहमती कार्रवाइयों के पेश नजर अहमद खान को छोड़ दिया गया। अलबत्ता उसकी नकलो हरकत को गोगेरा बंगला के इलाके तक महदूद कर दिया गया। अहमद खान के पै दर पै हमलों की वजह से मौजूदा साहिवाल और जिला तोबा तकरीबन 3 महीनों तक कब्जे से निकल गया और अमली तौर पर राय अहमद खान की अमलदारी कायम हो गई। इस दौरान में राय अहमद खान ने खुफिया तरीके से मुख्तलिफ सरदारों के साथ मिलकर बैक वक्त हमले की मंसूबाबंदी की, मगर अफसोस के कमालिया का खरल सरदार सरफराज और इलाके का सरदार निहान सिंह बेदी दोनों गद्दारी कर गए और इस सारे मंसूबे से डिप्टी कमिश्नर को इत्तला कर दी। इस मुखबरी पर बर्कले ने चारों तरफ अपने कासिद दौड़ाए। इस दौरान में हिफाजती तदाबीर के तौर पर गोगीरा से सरकारी खजाना, रिकॉर्ड और स्टोर तहसील की इमारत में मुंतकिल कर दिए गए और गोगेरा में अंग्रेज फौजियों ने मोर्चाबंदियां कर लीं। कर्नल पलटीन खुद लाहौर से अपनी रेजिमेंट यहाँ ले आया। उसके हमरा तोपें भी थी। राय साहब वापस झामरे आए और हमले के लिए दरिया पर उतरने की तैयारी करने लगे। उधर राय साहब ने मुल्लाहों से कहा, सारी बेड़ियां मुलंग वाले पतन पर खींच लाओ। सारिंग ने कहा, राय जी सामने तोपें हैं, अंग्रेज झामरे को मोंज की तरह कूट कर फूक बना देंगे। ऐसे ही तहफुजात चंद दीगर साथियों के भी थे। आधी रात का वक्त था। सारंग के जवाब में राय साहब ने मुजाहिदीन से कहा, सबसे पहले मेरा बेटा अलादाद कश्ती पर सवार होगा, फिर मैं, ताकि कल को तुम ये न कहो कि राय जी ने बेकार में सबको मरवा दिया और खुद किनारा कर गए। लायलपुर के करीब से रड़ाने गांव की जज कौम भी उनकी खलीफ थी। शेर खान जज ने कहा, राय जी, ए लड़का, कोई लोहे का तो है नहीं जो तोप का वार रोक लेगा। हम सारे जज इस पतन पर लड़ मरेंगे और जिंदगी भर ये जज्जा वाला पतन कहलाएगा। ये कहकर शेर जज ने अल्लादाद को कश्ती से उतार दिया। मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख और 16 सितंबर 1857 की रात जब बंगला पहुंचकर मुजाहिदीन ने हमला किया तो अंग्रेज भी मुकाबले के लिए तैयार बैठा हुआ मिला। उसने सामने से तोप चलवा दी। सो गोलियों का बारूद उसमें एक साथ निकलता था। जब फायर हुआ तो 4 मुजाहिद शहीद हो गए। वट्टू, खरल, जोये, फतेहाने, जज, जंजुए, सयाल और कई कौमें पीछे हट गईं। उनका कहना यह था कि ज़लई हेडक्वार्टर में लड़ाई मुश्किल है, लिहाजा इनको किसी मैदान में निकालो। एक बार किसी तरह उनको खुली जगह पर ले आए तो फिर हमारी तलवार जनी भी देख लेना। वट्टू और खरल पीछे हटकर नूरे की डल नामी जगह पर चले गए। बाकी सिपाही भी वहां पहुंच गई। लॉर्ड बर्कले की फौजें उनका पीछा करते हुए लघरा वाले पुल तक जा पहुंची। राय साहब के हुक्म पर मुजाहिदीन ने फसलों और झाड़ियों से छुपते छुपाते बर्कले की फौज का घेराव कर लिया। इस मौके पर राय साहब ने कहा, बेजिगरी से लड़ना शेरो, अंग्रेज की गोली किसी को नहीं लगेगी। अगर किसी को लगी तो सिर्फ मुझे, राय अहमद खान खरल को। 17 या 18 सितंबर के इस मार्के में बर्कले के 4 करानी, 5 रसलदार और 80 सिपाही मारे गए तो वो पीछे हट गया। उसके बाद अगला मार्का 3 दिन मुसलसल चला। बर्कले ने अपनी भागती हुई फौज को कई बार दोबारा लड़ने पर आमादा किया, मगर हर बार मुंह की खाई। मुजाहिदीन तोपों के सामने आए बगैर प्यादा फौज और घुड़सवारों को घात लगा कर मार रहे थे। इस सूरत हाल में अंग्रेजी फौज ने दस्ती बमों का इस्तेमाल शुरू किया, मगर मुजाहिदीन अचानक वार करके सूरत के साथ जगह बदल लेते थे। ये जंग नूरे की डल तक मौकूफ नहीं रही, बल्कि गशकोरी के जंगल समेत हड़िप्पा तक मैदान जंग बना हुआ था।
मुजाहिदीन के पास नेज़े, भाले, तलवारें और चंद सौ बंदूकें भी मौजूद थीं। अंग्रेजों का ज्यादा नुकसान उस वक्त शुरू हुआ जब मरने वाली फौज की बंदूकें और असलहा भी मुजाहिदीन के हाथ लगना शुरू हुआ। दस्त बदस्त लड़ाई में मुजाहिदीन भी शहीद हुए। अंग्रेजों के बारे में हनीफ रामी साहब ने लिखा है, उस वक्त वसी और अरीज इलाके से अंग्रेज फौज की 3000 लाशें उठाई गई थीं। 10 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमा 21 सितंबर 1857 को गशकोरी की जंग राय साहब की शहादत के साथ खत्म हो गई। राय साहब अपनी घोड़ी सावी पर चढ़कर लड़ते थे। राय साहब ने दोपहर के वक्त आखिरी बार अंग्रेजों को ललकारा, लेकिन मैदान में कोई हरकत न हुई। अंग्रेज फौज बड़ी तादाद में मारी जा चुकी थी और बाकी सहम कर 1.5 कोस पीछे हट चुकी थी। राय साहब ने कहा, हम नमाज के लिए निकलेंगे और शाम तक झामरे की तरफ अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। राय साहब ने वुजू किया और असर की नमाज शुरू कर दी। उनके साथ सरदार सारंग और 5-6 दीगर मुजाहिदीन भी मौजूद थे। लॉर्ड बर्कले 8-10 सिपाहियों के साथ इलाके का जायजा लेने एक बार फिर आगे बढ़ा तो एक सिपाही ने राय साहब को नमाज पढ़ते हुए देख लिया। बर्कले ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। धाड़े सिंह, गुलाब सिंह बेदी और खेम सिंह बेदी ने गोलियां चलाई। नमाज की दूसरी रकत चल रही थी जब राय साहब को 2 गोलियां लगी और वो जमीन पर आ रहे। फिर सरदार सारंग साहब को भी गोलियां लगी। बाकी साथी भी संभल न सके और बर्कले सर पर आ पहुंचा। उसने राय साहब का सर उतरवा कर नेज़े पर रखा और अपने साथ ले गया। यहाँ पहुंचकर वार सुनाने और ढोल गाने वालों के गले रिंत जाते हैं। बताते हैं कि जिस दिन खरल गिरा वो मुहर्रम का 10वां दिन था। गोली लगते ही अहमद खान सजदे में गिर गया। कहानी लफ्जों की सीढ़ी पे सदियों का जीना चढ़ते हुए 1857 ईस्वी से 61 हिजरी में जा रुकती है। आन की आन में नूरे की ढल करबला का मैदान बन जाती है। फर्क बस ये है कि इस बार हुसैन की जगह अहमद खान का सर नेज़े पे धरा है। बागियाना सर गोगीरा की जेल में कड़े पहरे में रखा है। रिवायत है कि पहरेदारों में एक सिपाही झामरे का था। एक रात उसे ख्वाब में अहमद खान मिला और कहने लगा, मेरा सर उस मट्टी की अमानत है मगर अंग्रेज उसे विलायत ले जाना चाह रहे हैं। पहरे की बारी आई तो सिपाही ने सर उतार कर घड़े में रखा और झामरे ले आया। ये गिरफ्तारियों का दौर था और साय से भी मुखबरी का खतरा रहता था। सो सिपाही ने रात के अंधेरे में अहमद खान की कब्र ढूंढी और किसी को बताए बगैर सर दफन करके लौट गया। राय अहमद खान को गोली मारने के बाद बरकले ने मुशीरों के कहने पर उसके जन बच्चे को भी मरवाने का हुक्म दे दिया। सरदार की बेगम ने बच्चों को मुराद फतेहाना के गांव रवाना किया और साथ पैगाम भिजवाया कि तेरा भाई मारा गया है। मुराद फतेहाना ने बच्चों के सर पर हाथ रखा और घोड़े को एड़ लगाई। जाते जाते अपनी बेगम को कहा कि लौट कर आया तो उन्हें खुद बालूंगा और ना सका तो जहाँ 4 का चौगा इकट्ठा करोगी वहाँ इन 2 का भी कर लेना। फतेह की निशानी के तौर पर अंग्रेज अफसरों ने पहले झामरे को आग दिखाई, फिर बट्टुओं के कई गांव नजरे आतिश किए और आखिरकार पिंडी शेख मूसा तक पहुंच गए। बरकले ने ख्याल किया कि अहमद खान के बाद उसे रोकने वाला कोई नहीं, लिहाजा उसने घोड़ा दरिया में डाल दिया। पानियों से मुराद फतेहाना ने उठकर बरकले को पहला नेजा मारा। पैदर पे वार हुए तो साहब घोड़े समेत दरिया बुर्द हो गया और अंग्रेज सिपाह तितर बितर होना शुरू हो गई। बाद में मुराद फतेहाना और उनके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। अहमद खान के बाद मुल्तान तक अंग्रेजों के सामने कोई खड़ा न हुआ। कुछ अरसे बाद बरकले का भाई बड़ा अंग्रेज अफसर होकर गोगेरा आया और अहमद खान के बेटे को तलब किया। पेश होने पर बरकले के भाई ने मोहम्मद खान से बाप का खून बख्शने को कहा। मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि वो बेटा होकर बाप का खून नहीं बख्श सकता। पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका था और अंग्रेज मिजाज में भी मसलहत आई थी। लॉर्ड साहब ने उठते हुए बात यूं खत्म की, ठीक है तुम्हारा बाप मरा और मेरा भाई, हिसाब बराबर, मगर अब रावी आबाद रहनी चाहिए। सो रावी दोबारा बस गई। कई दहाइयों बाद जब दूसरी नस्ल जवान हुई तो मुल्क आजाद हो चुका था। पोते को दादे अहमद खान की कब्र पक्की करवाने की सूझी। कब्र के इर्द गिर्द बुनियादें खोदी जा रही थीं कि एक कुदाल घड़े को लगी। मजदूरों ने घड़ा तोड़ा तो अंदर सर था। 110 साल पुरानी वजाहत में जरा फर्क नहीं पड़ा था। दाढ़ी के बाल वैसे ही बारीक थे और आंखें वैसे ही सालम थी। अलबत्ता जहां नेजा गाड़ा गया था वहां जरा जरा नमी महसूस होती थी। अकीदतमंदों को तो रस्ता हुआ खून तक दिखाई दे रहा था। राय अहमद खान के पोते नवाब अहमद अली खान ने जनाजा पढ़ाया। सर तो जिस्म के साथ दफन हो गया मगर कहानी हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो गई। मुजाहिदीन जिस जमीन के लिए लड़े वही जमीन गद्दारों में तोहफे के तौर पर बांट दी गई। मार्काए गशकोरी
दिल्ली का सकूत और बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी, ये सब कुछ सितंबर के आखिरी हफ्ते में एक साथ ही रूनुमा हुआ था। ताहम लड़ने वाले 1859 तक भी लड़ते रहे, जिनमें से किसी को फांसी दे दी गई, किसी को तोप से उड़ा दिया गया और किसी को काला पानी भेज दिया गया। 21 सितंबर को राय अहमद खान शहीद रहमतुल्लाह की बरसी खामोशी से गुजर जाती है। उसी की वजह तलाश करना चाहेंगे तो ऐवान इक़्तिदार में आपको जा बजा इन 10 नवाबों की औलादें खड़ी मिलेंगी, जिन्होंने मार्का कशकोरी में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए कौमी सतह का कोई प्रोग्राम तो क्या होगा। आज अगर आप राय अहमद खान खरल के नाम से भी वाकिफ नहीं तो इसकी वजह वही लोग हैं जिनमें अंग्रेजों ने वो जमीन बांटी थी जिसकी खातिर राय साहब ने अपनी शहादत पेश की।